से लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य के मौके पर वर्ष भर चलने वाले उत्सव का समापन समारोह चल रहा है, जिसमें थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री इसको संबोधित करेंगे। आपको बता दें, लचित बरफुकन अहोम साम्राज्य के शाही सेना के सेनापति थे, जिन्होंने 1671 में सराय घाट की लड़ाई में मुगलों को बुरी तरह पराजित किया था। माननीय प्रधानमंत्री थोड़ी देर में इस समारोह में शामिल होंगे और उद्बोधन करेंगे। Namaskar and good morning to this. We'll welcome you to this very special broadcast on the 400th birth anniversary celebrations of Lachit Barphukan, the legendary Assam General. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will be the chief guest at this valedictory function. And the government of Assam is celebrating various functions in connection with the 400th birth anniversary celebrations, including the building of a Lachit Samadhi at Holongpar near Assam's Teok. The former President of India, Shri Kovind, had launched Barphukan's birth anniversary celebrations and laid the foundation stone of the 150-foot bronze statue of the legendary Ahom commander Lachit Barphukan. Lachit Barphukan is a 17th century commander of the Ahom forces. Born on the 24th of November 1622, Barphukan is renowned for the 1671 Battle of Horaigat. His father, Momai Tamuli Borburua, was the commander-in-chief of the Ahom army. Ahom kings ruled what is now called Assam and parts of the neighboring states for nearly 600 years between the 13th and the 19th century. The kingdom witnessed many threats between 1615 and 1682 from the Mughals, first Jahangir and later Aurangzeb. The Ahom rulers made significant counterattacks between 1667 and 1682 to regain their occupied territories. Barphukan was a major part of the battles fought during this period. According to experts, Barphukan was well versed in humanities, military skills, and scriptures. He also held various positions in the kingdom, including Soladhara Borua, that is the scarf bearer of the Ahom king, the Ghora Borua, manager of the royal stable, commander of the Simulgor fort, and the Dolaksaria Borua, the superintendent of the royal household guards of King Chakradhaj Singh. Barphukan was appointed the commander of the Ahom army in August 1667 by Ahom King Singh. Following heavy losses, Mughal King Aurangzeb sent a large army headed by Raja Ram Singh I to recapture the lost territories. In August 1669, Barphukan and his army trounced the Mughals cavalry in the Battle of Alaboi, which was fought in the Alaboi hills near Dadara in North Guwahati. The legend of Barphukan, little by Nilotpol Borua, says arrows started raining on the Mughal boats, sparing their hearts, eyes, foreheads, and chests. Then there was relentless firing of slugs on the surviving Mughal soldiers. Mughal gunners tried to reply with their guns, but they were of no match to the Ahom preparedness. One of the soldiers recalled that there was no way of escape from death than suing for peace. He sent a messenger to the Ahom commander offering his submission, asking him to desist from firing their guns or shooting their arrows. Miri Sondikoi replied, "Lay down your weapons." When the Mughal commander's submission came, the battle came to an end. The victory that Lachit Barphukan had promised to his monarch was achieved. Feroz Khan and Mir Bakshi Sayyid Sana were made prisoners. Itakuli was finally under the command of the Ahoms. Within 2 months of their first departure from the capital of Gargaon, they had recovered not only the lost territories but also the lost prestige and glory. When Swargadaya Chakradhar Singh received the news of victory, he cried out, quote, "It is now that I can eat my morsel of rice with ease and pleasure.
unquote. Swargadeo dispatched presents and gifts to the victorious generals in Guwahati and proceeded in person to Bishwanath to perform sacrifice by the way of thanksgiving to the gods for conferring upon him the honor of victory. However, Lachit Barphukan had to stay put in Guwahati because he knew that the Mughals could return again. This is what the eminent writer Nilotpal Gohai has written in the book The Legend of Lachit Barphukan, and it is indeed a tribute to this great son of Ahom and of India that today we commemorate his 400th birth anniversary. The Battle of Horaigat, as we know, was the place where the Mughal invaders were stopped, and the expansion of the Mughal Empire, in a way we can say, was stopped by Lachit Barphukan. विज्ञान भवन में लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले उत्सव का समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, लचित बरफुकन अहोम साम्राज्य की शाही सेना के सेनापति थे, जिन्होंने 1671 में सराय घाट की लड़ाई में मुगलों को बुरी तरह पराजित किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में इस समापन समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित करने का निरंतर प्रयास रहा है। इसी भावना के अनुरूप देश वर्ष 2022 को लचित बरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है। इस उत्सव का उद्घाटन इसी वर्ष फरवरी में भारत के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा गुवाहाटी में किया गया था। लचित बरफुकन असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध सेनापति थे, जिन्होंने मुगलों को हराकर औरंगजेब के अधीन मुगलों की लगातार बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक रोक दिया था। लचित बरफुकन ने 1671 में लड़ी गई सराय घाट की लड़ाई में असमिया सैनिकों को प्रेरित किया और मुगलों को एक अपमानजनक हार स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। लचित बरफुकन, उनकी सेना की वीरतापूर्वक लड़ाई हमारे देश के इतिहास में प्रतिरोध की सबसे प्रेरक सैन्य उपलब्धियों में से एक है। विज्ञान भवन में इसका समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित करेंगे। यहाँ पर असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, श्री सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा मुख्यमंत्री असम के डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा शामिल होंगे और मुख्य अतिथियों में जो शामिल है वो है असम के विधानसभा के स्पीकर श्री विश्वजीत ट्रेबरी, असम के मंत्री श्री पीयूष हजारिका, लोकसभा के सांसद जस्टिस रिटायर रंजन गोगोई और लोकसभा सांसद श्री तोपोन कुमार गोगोई। ये कार्यक्रम विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है। पिछले 3 दिन से ये समापन समारोह विज्ञान भवन में चल रहा है। थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर इस समारोह को संबोधित करेंगे और इस सत्र का उद्घाटन भी करेंगे। Yes, indeed, Shoez. And talking about the Battle of Horaigat, it has been called by some experts as the greatest naval battle ever fought on a river. In Horaigat, Lachit Barphukan was able to coax a naval battle with the Mughals on the waters of the Brahmaputra by feigning an attack with a few ships from the front. According to experts, Barphukan was seriously ill during the battle, but when he heard of the Mughal fleet making advances, he forgot about his illness and led his soldiers from the front. Dr. Janovi Gogoi of the Dibrugarh University, who specializes in medieval history, describes Barphukan as an able commander and says that his courage is all the more lauded because he was terribly ill during the war. Historian H.K. Borpujari, in his 5-volume comprehensive history of Assam, writes on the Battle of Horaigat, quote, "The right-angled triangle of the Brahmaputra, the Itakuli Kamakha Ashtakranta, became a complicated tangle of boats and men battling to save themselves from drowning. The Assamese spanned the Brahmaputra by an improvised bridge of boats placed side by side.
they also resorted to a wily trick combining a frontal charge with a surprise attack from behind that proved decisive. As per historians, Ram Singh I had written to Aurangzeb extolling the Ahom soldiers. Every Assamese soldier is an expert in rowing boats, archery, digging trenches, and wielding guns and cannons. I have not seen such specimens of versatility in any other part. One single individual leads all the forces. Even I, Ram Singh, was not able to find any loophole. A letter said to be written by Ram Singh I says, Barphukan died in Kaliabor on the 25th of April 1672 at the age of 50. To commemorate Lachit Barphukan, the best cadet officer of every batch graduating from the National Defence Academy Khadakwasla is awarded the Lachit Barphukan Gold Medal. His bust can also be found at the NDA's entrance. And now we see that the Honorable Minister for Ports, Shipping, Waterways and Ayush, Shri Sarbananda Hon'ble, and Shri Bishwajit Daimari, Speaker of the Assam Legislative Assembly, and Shri Piyush Hazarika, Minister of the Government of Assam, Justice Retired Ranjan Gogoi, and Shri Tapan Kumar Gogoi, Member of Parliament, have already taken their seat, and the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has arrived at the Vigyan Bhavan, and he's taking a look at this model Assamese village that has been set up here, and he's talking to all those who are present, and he is in the company of the Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi, and the Chief Minister of Assam, Shri Dr. Himanta Biswa Sarma. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन आ चुके हैं। वे समय विज्ञान भवन में बरफुकन की स्मृति में एक प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसका अवलोकन कर रहे हैं, वहां के कलाकारों से बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री आसाम के डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, और थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री अब विज्ञान भवन के मुख्य सभागार में आएंगे, जहां सभी मुख्य अतिथि इस समय आ चुके हैं और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस समय सभागार में उपस्थित हैं। आसाम से आए हुए काफी गणमान्य व्यक्ति और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए गणमान्य व्यक्ति इस वक्त हैं, और सर्बानंद सोनोवाल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस वक्त विज्ञान भवन के मुख्य सभागार में हैं। इसके अलावा आपको जैसा बताया है कि जस्टिस रंजन गोगोई जो राज्यसभा सांसद है, लोकसभा सांसद तपोन कुमार गोगोई, और असम के विधानसभा के स्पीकर श्री विश्वजीत जयमेरी भी इस वक्त मुख्य सभागार में है। सभी अतिथि और गणमान्य व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री प्रदर्शनी को देखकर इस समय आ रहे हैं सभागार की ओर। Yes, indeed, Shoez, the Honorable Prime Minister is taking a view of the rural Assam setup that has been portrayed here at the West Courtyard of Vigyan Bhavan. And normally, this is the place from where the high dignitaries enter the main Vigyan Bhavan complex. And as we were also coming into the plenary hall, we looked at the beautiful village that has been set up at the West Courtyard, and the Prime Minister, in the company of the Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi, and the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, is going through the village, and he is a very keen learner of the different aspects of village life in different parts of India. And the Honorable Prime Minister is also exchanging pleasantries with the people who are present there. And the Prime Minister is looking at different models that have been kept here. And this has been explained by Dr. Himanta Biswa Sarma. This is a special exhibition that the Honorable Prime Minister is now visiting on the 400th birth anniversary celebrations of Lachit Barphukan, and slowly the Honorable Prime Minister is making his way to the plenary hall, and
Dr. Himanta Biswa Sarma, is explaining different photographs, pictures, and other artifacts that have been kept here at the exhibition. विज्ञान भवन के मुख्य सभागार में लक्षित बरफुकन की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह का आज समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं, मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो माननीय प्रधानमंत्री को प्रदर्शनी को दिखाते हुए माननीय प्रधानमंत्री वहां के लोक कलाकारों से बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब विज्ञान भवन के मुख्य सभागार की ओर आ रहे हैं, जहां पर ये मुख्य समारोह आयोजित किया जाना है, जहां माननीय प्रधानमंत्री समारोह को संबोधित भी करेंगे और इसके अलावा एक फिल्म दिखाई जाएगी जो लक्षित बरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर यहाँ प्रदर्शित की जा रही है। सभी गणमान्य व्यक्ति और असम से आए हुए अन्य सभी क्षेत्रों के व्यक्ति इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा करते हुए। जी बिल्कुल Shuez, and as the Honorable Prime Minister arrives on the dais at the plenary hall of the Vigyan Bhavan, there will be a devotional prayer song of the Ahom community, I Hing Lao, and after that the Honorable Prime Minister will be lighting the lamp and he would be paying floral tributes before the portrait of Lachit Barphukan. We can see that right on the dais there is a very beautiful and historical photograph of Lachit Barphukan and with his soldiers, and this is indeed the photograph that has caught everyone's attention, and the Honorable Prime Minister will be paying floral tributes. Thereafter there will be a choral song by eminent singers from Assam, and they will be rendering the Ahom Amar Rupohi, the very well-known song rendered and composed by late Dr. Bhupen Hazarika, and then the function will commence. Everyone here at the plenary hall of the Vigyan Bhavan is expectantly awaiting the arrival of the Honorable Prime Minister, and we can see that all the seats in the plenary hall, right from the main floor up to the galleries, have been taken, and the television cameras are also focused towards the western entrance of the plenary hall, from where the Honorable Prime Minister is expected to arrive at the dais any moment from now, and the dignitaries are already seated in the dais. They include the Speaker of the Assam Legislative Assembly, Shri Bishajit Daimari, Minister of the Government of Assam, Shri Piyush Hazarika, Shri Sarbananda Sonowal, Union Minister for Ports, Shipping, Waterways and Ayush, Justice Retired Ranjan Gogoi, Member of Parliament Rajya Sabha, and Shri Tapan Kumar Gogoi, Member of Parliament from Assam. विज्ञान भवन में पिछले 3 दिन से समारोह चल रहा है। लक्षित बरफुकन की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले उत्सव का ये समापन समारोह है, जिसका उद्घाटन 23 नवंबर को माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किया था। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, कई तरह के डिस्कशंस हुए, पैनल डिस्कशंस। इसके बाद माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी इस समारोह में भाग लिया और केंद्रीय राज्य मंत्री गृह श्री किरण रिजिजू ने भी इस समारोह में अपना संबोधन दिया था। अब से थोड़ी देर बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी समारोह को संबोधित करने के अलावा लक्षित बरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। अभी एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है जो विज्ञान भवन में ही चल रही है, उसको माननीय प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। उनके साथ हैं केंद्रीय मंत्री और अब माननीय प्रधानमंत्री इस समय मुख्य सभागार में आ चुके हैं। सभी लोगों ने खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया। माननीय प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री असम
भी इस वक्त मंच पर आसीन है। Yes, absolutely. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, who is also sporting an Ahomese gamusa, has taken his seat on the dais, and he is flanked to his right by the Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi, and Dr. Himanto Biswa Sarma, the Chief Minister of Assam. The Prime Minister just now visited the rural setup of Assam that has been set up as part of an exhibition, and also he visited the exhibition. And now there will be a presentation of a traditional Ahom devotional song. और अब माननीय प्रधानमंत्री के सम्मान में एक गीत का आयोजन किया जा रहा है।
आई सिंग लव, ये अहम समुदाय का एक प्रार्थना गीत था जो माननीय प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर सुनाया गया। अब माननीय प्रधानमंत्री दीप प्रज्वलित करके लक्षित बरफुकन की जो एक बहुत बड़ी सी फोटो लगाई गई है उसमें दीप प्रज्वलित करेंगे और अब माननीय प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री असम के श्री हेमंत बिस्वा शर्मा आमंत्रित करते हुए दीप प्रज्वलित करने के लिए। And the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma. The Honorable Prime Minister is lighting the traditional lamp, and other dignitaries are also being invited by the Prime Minister to light the lamp, and the Honorable Prime Minister has lit the traditional lamp, and now Dr. Himanta Biswa Sarma has also lit the traditional lamp. This is such a unique Indian facet of beginning of any function. Dr. Sarbananda Sonowal, the Minister for Ports, Shipping, Waterways and Ayush, has also lit the traditional lamp, and now Shri Tapan Gogoi, Member of Parliament, has lit the lamp. The Honorable Prime Minister is now paying floral tributes to the great son of India and Assam, Lachit Barphukan. The Prime Minister does pranam, and other dignitaries also paying floral tributes to Lachit Barphukan. The Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi, paying obeisance. Shri Sarbananda Sonowal, the Union Minister for Ports, Shipping, Waterways and Ayush, doing a namaskar at the portrait of Lachit Barphukan. Shri Tapan Kumar Gogoi also paying tributes to the portrait of Lachit Barphukan. Justice retired Ranjan Gogoi, Member of Rajya Sabha, paying his tributes to Lachit Barphukan, and now Dr. Himanta Biswa Sarma, the Chief Minister, paying his tribute to Lachit Barphukan. We can listen to this beautiful song that is going on in the background, and which was composed by late Dr. Bhupen Hazarika, Oho Mama Rupohi. The dignitaries have taken their seat on the dais now, and गणमान्य व्यक्ति अपना स्थान लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री के साथ सभी गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर लक्षित बरफुकन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। और अब Oho Mama Rupohi, this beautiful song composed by late Dr. Bhupen Hazarika.
Exam Amar Rupohi. And Dr. that Bhupen was Hazarika a का लिखा ये presentation गीत of late Dr. Bhupen Hazarika's well-known composition Ahomamar Rupohi by a group of artists from Assam. And now we have the welcome address by Shri Piyush Hazarika, Minister of महावीर the लासित Government of बरफुकन Assam. की 400वीं जयंती के अवसर पर आज आयोजित भव्य समारोह में हिस्सा ले रहे हैं हम सबके आदर्श प्रेरणा और गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, असम के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विश्वजीत दोयमारी जी, माननीय सांसद न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी, माननीय सांसद श्री तपन कुमार गोगोई जी और उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण को मैं स्वागत करता हूं। आक्रमणकारी मुगलों को अपने पराक्रम से परास्त करके देश के इतिहास में एक अनूठे ऐतिहासिक अध्याय को दर्ज करने वाले महावीर लासित बरफुकन की 400वीं जयंती का इस पावन अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं। देश के कुछ वीर योद्धाओं ने मुगलों के विस्तार की कोशिश का तत्कर मुकाबला किया और उन्हें हराकर गौरव का पताका फहराया था। इन वीर योद्धाओं में शिवाजी महाराज और महावीर लासित बरफुकन अन्यतम थे। समकालीन संदर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन हमारा ही दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महावीर लासित के पराक्रम की गाथा लगभग उपेक्षित ही रह गई। असम सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों को असम के इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय से अवगत करवाना है। लासित बरफुकन की वीरता की कहानी हम सभी को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करती है। महावीर लासित की देशभक्ति, वीरता और बलिदान हम में से प्रत्येक को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेगा। महावीर लासित बरफुकन को विश्व पटल पर स्थापित करने के असम सरकार के इस प्रयास में सहयोग के लिए हम केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री जी के आभारी हूं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी की नेतृत्व वाली हमारा सरकार द्वारा की गई ये पहल निश्चित रूप से सफल होगी और लासित बरफुकन की वीर गाथा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रसार और प्रसार मिलेगा। फिर एक बार सभी का स्वागत करते हुए मैं अपने भाषण को यही विराम देता हूं। जय हम, भारत माता की जय। असम सरकार के मंत्री श्री पीयूष हजारिका उद्घाटन संबोधन कर रहे थे। अब माननीय डॉक्टर हेमंत विश्वास शर्मा माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। And Dr. Himanta Biswa Sarma, the Chief Minister of Assam, presenting shawl, and also he is honoring the Prime Minister, and there's a traditional shawl that has been presented by the Chief Minister of Assam, and now we see a miniature statue of Mahavir Lasit Barphukan that has been presented by Dr. Himanta Biswa Sarma to the Honorable Prime Minister, and another artifact that has been presented to the Honorable Prime Minister, who accepts it with a namaskar, and there's a huge round of applause here at the plenary hall of the Vigyan Bhavan. The Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, has felicitated the Honorable Prime Minister, and now Shri Sarbanand Sonowal, the Union Minister for Port, Shipping and Waterways and Ayush, will address the plenary session.
केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी अब कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए और केंद्रीय मंत्री श्री नमस्कार। सर्बानंद सोनोवाल। आज की इस शुभ मुहूर्त पर हमारे बीच उपस्थित विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे मार्गदर्शक, देश के आदर्शवादी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, असम की राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, असम असेंबली की माननीय अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी जी, असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका जी, रिटायर्ड जस्टिस रंजन गोगोई जी, असम की सांसद तपन कुमार गोगोई जी और इस सभा में उपस्थित असम सरकार की सभी माननीय मंत्रीगण, असम से हमारी सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और परम श्रद्धार অসমৰ বিভিন্ন সত্ৰৰ পৰা অহা পৰম পূজনীয় সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকল, অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আৰু আজি সভাত उपस्थित सभी माननीय सभासदों और पत्रकार बंधुगण, आज का दिन हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक है, क्योंकि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महावीर लचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर यहाँ उपस्थित होकर हमें जो प्रेरणा दी है, जो हौसला दी है, जो सहयोग की है, इसके लिए हम असम की जनता हमेशा पर आभारी है और आभारी रहेंगे। असम सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है, लचित बरफुकन देश की स्वाभिमान का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, देशभक्ति की भावनाओं से जिन्होंने अपनी मातृभूमि रक्षा के लिए मुगल के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी है और जीत हासिल की है, और मां कामाख्या की धरती को, महापुरुष श्रीमंत देव गुरुदेव की धरती को उन्होंने दुश्मनों से बचाया, अपने असमिया की स्वाभिमान, सभ्यता, संस्कृति को रक्षा किया। भारत माता के सुपुत्र महावीर लचित बरफुकन हमारे लिए हमेशा प्रेरणा की प्रतीक रहेंगे और देश की हिफाजत के लिए, जनता की हितों के लिए हम हमेशा उसी भावना शक्ति से सेवा बढ़ाते जाएंगे। मोदी जी, आपने कल ट्वीट की द्वारा हमें अधिक प्रोत्साहित की है, देशवासियों को प्रोत्साहित की है। आपने लचित बरफुकन की उनकी जो साहस को आपने अतुलनीय बताया और आपने कहा कि
महावीर लासित बरफुकन की देश और देश का जनता की सेवा के लिए हमेशा वही उनके लिए प्रमुख रहे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी ये दिए हुए वाणी से निश्चित रूप से हमारे देश की नई पीढ़ी लासित बरफुकन के बारे में अध्ययन करे, अनुसंधान करे और उनके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करे। आप हमेशा हमें मार्गदर्शन देती आई है। जब से आप प्रधानमंत्री बने तब से मैंने देखा है, मैं असम का एक व्यक्ति होने के नाते, नॉर्थ ईस्ट की एक व्यक्ति होने के नाते मैं इन बातों को गंभीर रूप से महसूस करता हूं। पहले नॉर्थ ईस्ट को कोई देखता ही नहीं था, लेकिन आपने देश के अलग अलग प्रांतों का साथ नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो निरंतर कोशिश की, जो प्यार आपने दी, जो आदर, जो स्नेह आपने दी है, ये नॉर्थ ईस्ट की कोई भी व्यक्ति नहीं भूल सकती। ये हमारे लिए बहुत बड़े तोहफा है। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि आज देश को आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए, पहचान बनाने के लिए आपने देशवासियों को जैसे आत्मविश्वास दी है, तो मुझे लगता है कि लासित बरफुकन के जो आदर्श आपने सही पालन किया है, सही दिशा पर उसको लागू किया है। इस अवसर पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अपनी असमिया भाषा में मैं कुछ समय के लिए संबोधन करना चाहता हूं। हमारी रूपकोण ज्योतिप्रसाद আগৰৱালাদেৱে তেখেতৰ বিখ্যাত কবিতা লাচিতৰ আহ্বানত লিখিছিল, নতুন দিনৰ অসমীয়া যুগে যুগে হবি তই হৰাই ঘটীয়া, তোৰ দেহ ৰাখিবলৈ গঢ়ি গঢ়ি লবি তই নতুন হিলৈ, চিৰজয়ী হবি তই মাভৈ মাভৈ। অৰ্থাৎ লাচিতৰ মহৎ আদৰ্শক সাৰোগত কৰি আমি চিৰজাগ্ৰত প্ৰহৰী হৈ দেশ মাতৃৰ সেৱাত সমৰ্পিত ভাৱনাৰে কাম কৰি যাব লাগিব। মোগলৰ বিৰুদ্ধে লাচিত বৰফুকনৰ যুদ্ধ পৰিচালনাৰ কাহিনীত অসমীয়া জাতিয়ে যিদৰে সংগঠন শক্তি, নিয়মানুবৰ্তিতা আৰু একমুখী কাৰ্যপন্থাৰ সক্ষমতাৰ পৰিচয় দিলে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংৰক্ষিত বুৰঞ্জীত কতো তেনে উদাহৰণ পোৱা নাযায়। এই মুহূৰ্ততে এটি কথা আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে শৰাইঘাটৰ যুঁজত মোগলৰ বিৰুদ্ধে যিটো ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল, সেই পৰিকল্পনাত অন্যতম লাচিতৰ হোতা আছিল আতন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া। আমি আতন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াকো গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো। স্বৰ্গদেউ চক্ৰধৰ সিংহই মোগলৰ বিৰুদ্ধে আহোমৰ সেনাপতি ৰূপে বাছি উলিয়াইছিল লাচিত বৰফুকনৰ দৰে বীৰ যোদ্ধাক। গতিকে সেইগৰাকী মহান যোদ্ধাই সুদক্ষ সেনাপতিয়ে তেওঁৰ প্ৰচুৰ আহিলা পাতি আৰু বিপুল সৈন্যবাহিনীৰ ওপৰতে অকল নিৰ্ভৰ নকৰে, তেওঁৰ প্ৰধান অৱলম্বন হৈছে সুদৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা আৰু অবিচলিত নিৰ্ভীকতা। এই ক্ষেত্ৰত মহান আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকন আছিল অদ্বিতীয়। লাচিত বৰফুকনে 1671 চনৰ ঐতিহাসিক শৰাইঘাটৰ ৰণত থলুৱা ৰণকৌশল আৰু থলুৱা যুদ্ধ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োগেৰে যুঁজি মোগলক অসমৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিল। লাচিতে তেতিয়াই আমাক আত্মনিৰ্ভৰতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন আৰু স্বাভিমান দেখুৱাই গৈছে। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने आज मेक इन इंडिया के जरिए देशवासियों को आत्मनिर्भर होने के लिए जो मंत्र दी है,
आपने मार्गदर्शन दी है, मुझे लगता है कि आज आपने इसके जरिए लासित बरफुकन को भी नमन किया है, श्रद्धा अर्पण की है, क्योंकि लासित बरफुकन ने जो हथियार, जो सामान इस्तेमाल किया था मुगल के खिलाफ लड़ाई में, नेवल फाइट में, पानी की लड़ाई में, जलमार्ग की लड़ाई में, उसी कालखंड में जो भी हथियार वो इस्तेमाल करती थी, सब खुद असम के लोगों ने उसको निर्माण किया था। आत्मनिर्भर भारत का तब से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा यात्रा शुरू हुई, और आज इस यात्रा को आपने साकार करने के लिए, विश्व भर में उसको प्रतिष्ठित करने के लिए देशवासियों को आपने जो हौसला दी, ये सराहनीय है। मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ मैं भूपेंद्र हमारे सबके प्रिय है, दिल में है और हमेशा रहेगा। भूपेंद्र ने गाया था, स्वदेशर कारणे नरिया देहारे मैं करिছিলো मुगলৰ हते महारण, बंगहर हुमितेरे लुइट रांगली करी राखिছিলো जननीक मैं दिया पन। और जो प्रतिज्ञा लासित बरफुकन ने ली थी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, वो प्रतिज्ञा उन्होंने सही निष्ठापूर्वक पालन किया था। तो इसलिए लासित बरफुकन हमेशा अमर रहेगा, और अमर रहेगा हमारे दिल में और इतिहास में, क्योंकि उन्होंने जो मार्गदर्शन, उन्होंने जो दिशा हमें दी है, जो मनोबल दी है, जो साहस दी है, जो ताकत दी है, इसके लिए आज हम भारत माताओं को दुनिया की हर प्रांत पर अपने शक्ति दिखाने के लिए हमारे भारत माताओं के सुपुत्र सभी आज प्रतिबद्ध हुए हैं आपके नेतृत्व में। और मैं इसी शब्दों का साथ फिर से यहां उपस्थित आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए असम सरकार को, क्योंकि डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने सही कदम उठाया राष्ट्र भर में लासित बरफुकन के बारे में देश के जनता को जानकारी देने के लिए जो कदम आपने उठाए हैं, असम की जनता की सहयोग से, भारत सरकार की मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से और देश के अलग अलग प्रांतों की जनताओं के सहयोग से, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे हम इस अभियान को आगे बढ़ाते जाएंगे और निश्चित रूप से हमारे आदर्शवादी नेता मोदी जी हमेशा हमें हर पल में मनोबल देते आए हैं, और देश सेवा, अपने मातृभूमियों के लिए भक्ति भावनाओं से कैसे सेवा की जाती है, इसके लिए जो आपने उदाहरण खड़ा की है आपके 8 साल की कार्यक्रम में, मुझे लगता है कि देशवासी इसलिए आज नई पीढ़ियों को सही दिशा मिला है। आपके मार्गदर्शन से जो दिशा दी है, इस दिशा से सबको ताकत मिला है। हर भारतीय आपकी नाम पर गर्व महसूस करता है, और मुझे लगता है कि इसी दिशा पर हम अपने देश को आगे बढ़ाते जाएंगे और महावीर लासित बरफुकन को हमेशा अपने बीच जिंदा रखेंगे। इसी शब्दों का साथ मैं সকলোকে শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতাৰে মই আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা শ্ৰদ্ধা জনাই সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো। ধন্যবাদ। জয় অসম, भारत माता की। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल महान लचित बरफुकन के वीर और शौर्य की चर्चा करते हुए और इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए विशेष कार्य की है पिछले 8 साल में। और अब असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी इसको संबोधित करेंगे। विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, असम की महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, केंद्रीय सरकार में मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी जी, भारत की उच्चतम न्यायालय की भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी, हमारे बीच में उपस्थित मंत्री पीयूष हजारिका जी, सांसद तपन गोगोई जी, सभा में उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, शिक्षाविद, छात्र छात्रियों, देवी और सज्जनों और अहोমৰ পৰা অহা
আমার সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ সকল, आज हम सभी ये महान योद्धा वीर लासित बरफुकन की 400वीं जयंती के समापन समारोह में एकत्रित हुए हो। ये हमारे लिए आनंद और सौभाग्य की विषय है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर आज देश की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है। मैं इस भव्य समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके गरिमामय उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गण्यमान्य और आमंत्रित व्यक्तिगण, विशिष्ट अतिथियों और मीडिया के प्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आज ये सभा असम के हर जिले से, हर गांव से असम वासी आपके भाषण सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं असम का जनता को नमन करता हूं। আজিৰ এই সুন্দৰ মুহূৰ্তত মই অসমবাসী ৰাইজৰ শ্ৰী চৰণত নমন কৰিছো আৰু বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্ম জয়ন্তীত যি ধৰণে এক উৎসাহ আৰু শ্ৰদ্ধা ভাৱেৰে সমগ্ৰ অসমখনক একতাৰ বান্ধেৰে বান্ধি লাচিত বৰফুকনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়ালে, तार बाबे अहोमबासी राइजলৈ कृतज्ञता जनाइছো। हम लोग ने एक ऐप रिलीज किया था कि लासित बरफुकन का बारे में आपका मनोभाव व्यक्त कीजिए। 40 लाख लोगों ने ये ऐप में लासित बरफुकन के लिए श्रद्धा सुमन आगे बढ़ाया। बंगाली भाषा में हुआ, बोडो भाषा में हुआ, मिसिंग भाषा में हुआ, असमिया भाषा में हुआ। एक प्रकार से पूरा असम को एक एकता का नया बांध से सब समेट लिया और एक बड़ा असम जो हमारा कल्पना का था उनका नींव रखा। मैं असमवासी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के उत्थान के लिए अपने को समर्पण किया। राम जन्मभूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन का महाकाल हो, भारत का सभ्यता संस्कृति का उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आप को समर्पण किया, एक नया भारत का निर्माण किया। आज वो भारत विश्व गुरु बनने का रास्ता में निकल चुका है। भारत का इतिहास की एक बहुत बड़ा जो घटना था, वो घटना था सरायघाट का युद्ध। सरायघाट युद्ध का पहले भी 1200 शतिकाओं में भी महाराज पीठू ने बख्तियार खिलजी का नेतृत्व में जो आक्रांत आया था उनको पराजित किया था। सरायघाट युद्ध में लासित बरफुकन ने मुगल आक्रांता को ना कि हरवाया, ऐसा ही नहीं, पूरा उत्तर पूर्व का संस्कृति को उन्होंने प्रिजर्व किया, उन्होंने रक्षा किया। मुगल आक्रांता ना तो म्यांमार तक पहुंच जाता था, साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच जाता था, लेकिन लासित बरफुकन ने उनको डिसिसिवली हरवाया और लासित बरफुकन का कारण हमारा समाज, हमारा संस्कृति और उत्तर पूर्व का जो ऐतिहासिक संस्कृति और विरासत है वो हमने प्रिजर्व कर सका। इसीलिए हमेशा कृतज्ञ जाति लासित बरफुकन को नमन करता है, लासित बरफुकन को अब हमेशा दिल में रखते हैं। हम सब जानते हो, जब औरंगजेब ने यह देश को शासन किया, छत्रपति शिवाजी, दुर्गादास राठौर, गुरु गोविंद सिंह, लासित बरफुकन जैसा योद्धाओं ने उनको टिकने नहीं दिया। आज भारत का जो साम्राज्य विस्तार का औरंगजेब का जो सपना था, भारत का संस्कृति को परिवर्तन करने का वो जो दुस्साहस किया था, इन्हीं वीरों ने मिलके उनका पूरा सपना को परास्त किया था और हमारा भारतवर्ष का सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण रखा। मैं आह्वान करता हूं, भारतवासियों को आह्वान करता हूं
कि महावीर लासित का कंट्रीब्यूशन खाली असम के लिए नहीं था, पूरा देश का सभ्यता के लिए था, पूरा देश के लिए था। और वो महान योद्धा को भारतवर्ष का इतिहास में उनका नाम सोनाली अक्षर में लिखा होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। यही मैं भारतवासियों को आह्वान करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी हमें हमेशा प्रेरणा देता है कि हमारा इतिहास को सामने लाने के लिए हमारे जो अनसंग हीरोज है उनको देश का सामने लाने के लिए हमारे ये प्रयास था कि महावीर लासित बरफुकन का जो गौरव गाथा ये देश का सामने लाने के लिए हमें ये विनम्र प्रयास किया था। लेकिन सरकार की प्रयास ही काफी नहीं होता है, जनता का प्रयास होना चाहिए, हमारा इतिहासकार का प्रयास होना चाहिए। इसीलिए हमारा विनम्र निवेदन होगा इतिहासकारों को, हमारा भारत खाली औरंगजेब का कहानी नहीं है, हमारा भारत खाली बाबर का कहानी नहीं है, हमारा भारत खाली जहांगीर हुमायूं का कहानी नहीं है, हमारा भारत लासित बरफुकन का है, हमारा भारत छत्रपति शिवाजी का है, हमारा भारत गुरु गोविंद सिंह का है, हमारा भारत दुर्गादास राठौर का है। बुरंजी को नया सिरे से देखने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए और इसी से ही हमारे विश्व गुरु होने का सपना साकार होगा। मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप लोग सब जब भी समय मिले असम को आइए, असम का म्यूजियम में, असम का संग्रहालय में हमारा सारे गौरव गाथा ऐसे ही पड़ा है जैसा एकदम कहीं कुछ प्रकार का मिलवाट नहीं है, जैसे था ऐसे ही हमारा बुलंदीकार ने सारा कहानी को लिपिबद्ध करके रखा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का प्रेरणा से ही आज हम इतना तक पहुंचा हो। मेरा निवेदन होगा, मेरा आशा होगा कि आज प्रधानमंत्री जी उत्तर पूर्व को देश का साथ जोड़ने के लिए जो एक विशाल प्रचेष्टा हाथ में लिया है वो हम सबको मिलके उस प्रचेष्टा को ताकत देना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को भौगोलिक रूप से एकत्रित किया था, लेकिन देश का आत्मा पटेल जी के प्रेरणा लेते हुए आज देश का आत्मा प्रधानमंत्री मोदी जी एकत्रित कर रहा है। आज दक्षिण का लोग काशी में आते हैं तमिल संगम के लिए, आसाम का लोग माधेपुर जाते हैं कृष्ण रुक्मिणी का विवाह को स्मरण करने के लिए। देश का आत्मा जोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। लासित बरफुकन का सपना एक हमारा विशाल संस्कृति को प्रिजर्व करने का जो सपना था, यही सपना प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में साकार हो, यही हम विनम्रता से भगवान को प्रार्थना करता हूं। महावीर लासित बरफुकन का कंट्रीब्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए असम सरकार ने कोई सारा व्यवस्था लिया है। होलोंगा पार में उनका जहां समाधि है वहां एक भव्य 150 फीट का प्रतिमा स्थापन करने का काम शुरू हुआ है। आलाबोई रॉन का समाधि का निर्माण हुआ है। एनडीए में हमें आर्मी का जो बेस कैडेट है उनको लासित बरफुकन सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और डेरगांव का हमारा असम सरकार के जो पुलिस एकेडमी था उनको भी हम लासित बरफुकन का नाम में समर्पित किया हूं। हमारा प्रचेष्टा होगा कि लासित बरफुकन का जीवन गाथा भारत का सभी भाषा में अनुवाद करने का और भारत का सब स्टेट कैपिटल और बड़े यूनिवर्सिटी में लासित बरफुकन का जीवन का ऊपर चर्चा करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेगा। आप प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद में हम जरूर सफल होगा। यही बात बोलते हुए मैं आप लोग को सबको सादर प्रणाम करता हूं। অসমত আজি যিমান ৰাইজে অত্যন্ত সহৃদয়তাৰ সৈতে যি ধৰণে দেশপ্ৰেমৰ ভাৱনাৰে একেবাৰে নিজক বিলীন কৰি আমাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আহোম বীৰ, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া বীৰ, ভাৰতৰ এক অনন্য প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনক যিদৰে শ্ৰদ্ধা জনালে তাৰ বাবে মই অসমবাসী ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়ালৈ
অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। জয় আই অসম, জয় মা ভাৰতী। That was Dr. Himanta Biswa Sarma, the Chief Minister of Assam, who spoke about the contribution of General Lachit Barphukan and his contribution in the preventing the expansion of the Mughal Empire in the northeast. And now the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be releasing the book called Lachit Barphukan, Assam's Hero Who Halted the Mughals. And the Honorable Prime Minister has released this book, and now it is being displayed in the plenary hall. And after this there will be a documentary on the life and times of Lachit Barphukan, and this documentary will be talking about the heroism of Lachit Barphukan. करने हर चुनौती का सामना, मातृभूमि की करने रक्षा उठा एक महायोद्धा, ब्रह्मपुत्र सी प्राचीन विरासत का वंशज, भारतवर्ष के अमर शूरवीरों में एक, दास्तान एक अमर विरासत की। असम पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, जहां बसता है ब्रह्मपुत्र का सबसे भव्य रूप। रामायण और महाभारत की सचित्र पांडुलिपियां जो 17वीं शताब्दी के जोरहाट में पेड़ की छाल पर पाई गई, असम के प्राचीन प्राग ज्योतिषपुरा होने का सशक्त प्रमाण है। असम कभी महान कामरूप का गढ़ था। 5वीं शताब्दी की ये शिलालेख इस राज्य के अस्तित्व के प्राचीन साक्ष्यों में से एक है। निधानपुर और तुबी में मिले ताम्रपत्र कामरूप के प्रतिष्ठित शासक राजा भास्कर वर्मन की महिमा का बखान करते हैं। 1228 शूरवीर राजकुमार सुख्ता ने ब्रह्मपुत्र की घाटियों में प्रवेश किया अहोम वंश की स्थापना के लिए। अहोम के साथ ही शुरुआत हुई एक अनूठी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की, जो आज के असम को परिभाषित करती है। अहोम अपने पूरे इतिहास के दौरान पश्चिमी खतरों से लोहा लेता रहा, गौरवान्वित और अपराजित। जनवरी 1662 मीर जुमला ने ब्रह्मपुत्र घाटी पर आक्रमण कर निचले असम को कब्जे में ले लिया। तब राज्य के मंत्रियों ने खिलाझारी घाट में एक समझौता किया। एक काला दिन जो सदा के लिए असम के स्मृति पटल पर अंकित हो गया, जिसने 400 साल पुराने राजवंश की जड़ें हिलाकर रख दी। एक अपमानजनक समझौता, अहोम खजाने को कंगाल बनाने के लिए थोपी गई शर्तें। लेकिन वो यही नहीं रुके। राजा की इकलौती संतान, उनकी बेटी को मुगल सम्राट के हरम में शामिल होना पड़ा। एक ऐसा अपमान जिसे स्वर्गदेव सह ना पाए। नवंबर 1663 नए स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंहा ने गद्दी संभाली। लक्ष्य केवल एक, मातृभूमि की आजादी, अहोम गौरव की पुनः स्थापना। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था।
कौन करेगा अहोम सेना का नेतृत्व? अपने गौरव, राष्ट्र और स्वर्ग देव के लिए मर मिटने को तैयार एक योद्धा। ये केवल लासित ही हो सकते थे। स्वर्ग देव का विश्वास और बॉरफुकन की हैंडल थामे लासित ने अब कमान संभाल ली थी। सराय घाट 1671। 4 साल की लंबी तैयारियों का निर्णायक क्षण आ चुका है। अपने बोरफुकन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दोनों किनारों पर सैन्य बेड़ों के साथ आने से नावों की एक दीवार सी बन गई, लगातार तोपें दागते हुए। डर अब मुगल सेना को जकड़ने लगता है। अहोम सेना का साहस शिखर छू लेता है। लासित बोरफुकन आगे बढ़कर स्वर्गदेव, राष्ट्र और लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। मुगलों की हार होती है और अहोम की जीत। मातृभूमि अब सुरक्षित है। एक अचूक रणनीतिज्ञ, सबके प्रिय बोरफुकन जनता के चहेते कल भी और आज भी ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बोरफुकन। लासित बोरफुकन को वास्तविक को प्रदर्शित करती हुई ये फिल्म प्रदर्शित की गई, जिसको माननीय प्रधानमंत्री और सभी गणमान्य व्यक्तियों ने बहुत ध्यान से देखा सुना। And now the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will address the valedictory session of the 400th birth anniversary celebrations of Mahavir Lachit Barphukan. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. महान नायक लासित बोरफुकन जी सारिखो बोसोरिया जयंती उपलक्षे देखो राजधानी लोई ओहा आरु याद होमोबे तो हुआ आपनालोको होकोलुके मूल आंतरिक अभिवादन आरु हेवा जोनाइसु असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे साथी सर्बानंद सोनोवाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विश्वजीत जी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी, तपन कुमार गोगोई जी, असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका जी, सांसदगण और इस कार्यक्रम में शामिल और देश विदेश में असम संस्कृति से जुड़े सभी महानुभाव, सबसे पहले मैं असम की उस महान धरती को प्रणाम करता हूं जिसने मां भारती को लासित बोरफुकन जैसे अदम्य वीर दिए हैं। कल पूरे देश में वीर लासित बोरफुकन की 400वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर दिल्ली में 3 दिनों के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है इस कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में असम के लोग भी इन दिनों दिल्ली आए हुए हैं। मैं आप सभी का, असम की जनता को और 130 करोड़ देशवासियों को इस अवसर पर
अनेक अनेक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमें वीर लासित की 400वीं जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य उस कालखंड में मिला है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर असम के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। मैं भारत की अमर संस्कृति, अमर शौर्य और अमर अस्तित्व के इस पर्व पर इस महान परंपरा को प्रणाम करता हूं। आज देश गुलामी की मानसिकता को छोड़ अपनी विरासत पर गर्व करने के भाव से भरा हुआ है। आज भारत न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक विविधता को सेलिब्रेट कर रहा है, बल्कि अपनी संस्कृति के ऐतिहासिक नायक नायिकाओं को गर्व से याद भी कर रहा है। लासित बोरफुकन जैसी महान विभूतियां भारत मां की अमर संतानें इस अमृत काल के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी अविरत प्रेरणा है, निरंतर प्रेरणा है। उनके जीवन से हमें अपनी पहचान का, अपने आत्मसम्मान का बोध भी होता है और इस राष्ट्र के लिए समर्पित होने की ऊर्जा भी मिलती है। मैं इस पुण्य अवसर पर लसित बोरफुकन के महान शौर्य पराक्रम को नमन करता हूं। साथियों, मानव इतिहास के हजारों वर्षों में दुनिया की कितनी ही सभ्यताओं ने जन्म लिया। उन्होंने सफलता के बड़े बड़े शिखरों को छुआ। ऐसी सभ्यताएं भी हुई जिन्हें देखकर लगता था कि वो अमर है, अपराजेय है, लेकिन समय की परीक्षा ने बहुत सारी सभ्यताओं को परास्त कर दिया, चूर चूर कर दिया। आज दुनिया उनके अवशेषों से इतिहास का आकलन करती है, लेकिन दूसरी ओर यह हमारा महान भारत है। हमने अतीत के उन अप्रत्याशित जलजावातों को सामना किया। हमारे पूर्वजों ने विदेशों से आए आतताइयों के अकल्पनीय आतंक को झेला, सहन किया, लेकिन भारत आज भी अपनी उसी चेतना, उसी ऊर्जा और उसी सांस्कृतिक गौरव के साथ जीवंत है, अमरत्व के साथ जीवंत है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में जब भी कोई मुश्किल दौर आया, कोई चुनौती खड़ी हुई, तो उसका मुकाबला करने के लिए कोई न कोई विभूति अवतरित हुई है। हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए हर कालखंड में संत आए, मनीषी आए। भारत को तलवार के जोर से कुचलने का मंसूबा पाले, आक्रमणकारियों का मां भारती के कोख से जन्मे
वीरों ने डटकर मुकाबला किया। लासित बोरफुकन भी देश के ऐसे ही वीर योद्धा थे। उन्होंने दिखा दिया कि कट्टरता और आतंकी हर आग का अंत हो जाता है, लेकिन भारत की अमर ज्योति, जीवन ज्योति अमर बनी रहती है। साथियों, असम का इतिहास अपने आप में भारत की यात्रा और संस्कृति की एक अनमोल विरासत है। हम अलग अलग विचारों, विचारधाराओं को, समाजों, संस्कृतियों को, आस्था और परंपरा को एक साथ जोड़ते हैं और होम राज में सबको साथ लेकर बने शिव सागर, शिव देउल, देवी देउल और विष्णु देउल आज भी इसके उदाहरण है। लेकिन अगर कोई तलवार के जोर से हमें झुकाना चाहता है, हमारी शाश्वत पहचान को बदलना चाहता है, तो हमें उसका जवाब देना भी आता है। असम और पूर्वोत्तर की धरती इसकी गंवा रही है। असम के लोगों ने अनेकों बार तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों का मुकाबला किया और आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ा। अपनी पूरी ताकत झोंक कर मुगलों ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर एक बार लासित बोरफुकन जैसे योद्धा आए और अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथ से गुवाहाटी को आजाद करवा लिया। औरंगजेब ने हार की उस कालिक को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो हमेशा हमेशा असफल ही रहा। वीर लासित बोरफुकन ने जो वीरता दिखाई, सराय घाट पे जो साहस दिखाया, वो मातृभूमि के लिए अगाध प्रेम की पराकाष्ठा भी थी। असम ने अपने साम्राज्य के एक एक नागरिक को जरूरत पड़ने पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार किया था। उनका एक एक युवा अपनी माटी का सिपाही था। लासित बोरफुकन जैसा साहस, उनके जैसी निडरता, यही तो आसाम की पहचान है। और इसलिए तो हम आज भी कहते हैं, हुनी साने लोरा हो। लासी तोरा को था, मुगल विजयी वीर इतिहास है लिखा। अर्थात बच्चों, तुमने सुनी है लासित की गाथा? मुगल विजयी वीर का नाम इतिहास में दर्ज है। साथियों, हमारे हजारों वर्षों की जीवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता, यही भारत का इतिहास है। लेकिन हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने, पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास
अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लासित बारफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? क्या देश के संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? हम सब जानते हैं कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में अत्याचारियों पर विजय की भी हजारों गाथाएं हैं, जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं। उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई, अब देश उसे सुधार रहा है। यहां दिल्ली में हो रहा यह आयोजन इसी का प्रतिबिंब है। और मैं हेमंता जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि ये कार्यक्रम दिल्ली में किया। वीर लासित बरफुकन की शौर्य गाथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए असम सरकार ने कुछ ही दिन पहले एक म्यूजियम बनाने का ऐलान किया है। मुझे बताया गया है कि हेमंता जी की सरकार ने असम के ऐतिहासिक नायकों के सम्मान में एक मेमोरियल तैयार करने की भी योजना बनाई है। निश्चय ही ऐसे प्रयासों से हमारी युवा और आने वाली पीढ़ियों को भारत की महान संस्कृति को ज्यादा गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। असम सरकार ने अपने विजन से जन जन को जोड़ने के लिए एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। इसके बोल भी बहुत अद्भुत है। ओहो मार आकाखोर, ओहो मार आकाखोर, भूटा तोरा तुम्हें, हा हो कोटी पोरी भाखा तुम्हें। यानी असम के आकाश का दूर तारा तुम हो, साहस शक्ति की परिभाषा तुम हो। वाकई वीर लासित बोरफुकन का जीवन हमें देश के सामने उपस्थित कई वर्तमान चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणा देता है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थों को नहीं, देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमारे लिए परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं, बल्कि देश सबसे बड़ा होना चाहिए। कहते हैं कि राष्ट्र रक्षा के लिए
अपनी जिम्मेदारी न निभा पाने पर वीर लासित ने मोमाई को भी सजा दी थी। उन्होंने कहा था, देहोत कोई मोमाई डांगोर न होए। यानी मोमाई देश से बड़ा नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता देश से बड़ा नहीं होता। आप कल्पना करिए, जब वीर लासित की सेना ने यह सुना होगा कि उनका सेनापति देश को कितनी प्राथमिकता देता है, तो उस छोटे से सैनिक का हौसला कितना बढ़ गया होगा। और साथियों, ये हौसला ही होता है जो जीत का आधार होता है। मुझे खुशी है कि आज का नया भारत राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के इसी आदर्श को लेकर आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब कोई राष्ट्र अपने सही अतीत को जानता है, सही इतिहास को जानता है, तो ही वो अपने अनुभवों से सीखता भी है, उसे भविष्य के लिए सही दिशा मिलती है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास की दृष्टि को केवल कुछ दशकों या कुछ सदियों तक सीमित न रखें। मैं आज असम के प्रसिद्ध गीतकार द्वारा रचित और भारत रत्न भूपेन हजारिका द्वारा स्वरबद्ध एक गीत की दो पंक्तियां भी दोहराना चाहूंगा। इसमें कहा गया है, मोई लासिते कोइस, मोई लासिते कोइस, मुर हो नाई नाम लुआ, लुईत पोरिया डेका डोल। यानी मैं लासित बोल रहा हूं, ब्रह्मपुत्र किनारे के युवाओं, मेरा बार बार नाम लो। निरंतर स्मरण करके ही हम आने वाली पीढ़ियों को सही इतिहास से परिचित करा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लासित बोरफुकन जी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी देखी, बहुत ही प्रभावित करने वाली थी, शिक्षा देने वाली थी। साथ ही मुझे उनकी शौर्य गाथा पर लिखी किताब का विमोचन करने का भी सौभाग्य मिला। इस तरह के आयोजनों के जरिए ही देश के सही इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं से जन जन को जोड़ा जा सकता है। साथियों, मैं जब आज देख रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया, असम के और देश के कलाकारों को जोड़ करके हम इस पर सोच सकते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक जानता राजा नाट्य प्रयोग है, करीब 250-300 कलाकार, हाथी, घोड़े, सारे कार्यक्रम में होते हैं और बड़ा प्रभावित कार्यक्रम है। क्या हम लासित बरफुकन जी के जीवन पर ऐसा ही एक नाट्य प्रयोग तैयार करें और हिंदुस्तान के कोने कोने में ले जाएं? एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है ना, उसमें ये सारी चीजें बहुत बड़ी ताकत देते हैं। हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, पूर्वोत्तर को भारत के सामर्थ्य का केंद्र बिंदु बनाना है। मुझे विश्वास है वीर लासित बोरफुकन की 400वीं जन्म जयंती हमारे इन संकल्पों को मजबूत करेगी और देश अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार आसाम सरकार का
हेमंता जी का, आसाम के लोगों का हृदय से आभारी हूं कि इस पवित्र समारोह में मुझे भी पुण्य कमाने का अवसर मिल गया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, saying that he is feeling blessed by being present here at the valedictory function of the 400th birth anniversary celebration of Mahavir Lachit Barphukan, and the Honorable Prime Minister doing namaskar to everyone present in the plenary hall, and also exchanging pleasantries now with retired Chief Justice of India Ranjan Gogoi and other dignitaries. The Honorable Prime Minister is now talking to his cabinet colleague Dr. Shri Sarvananda Sonowal, and also to the Assam Speaker Shri Vishwajit Daimari. The Honorable Prime Minister and the dignitaries on the dais are now greeting all the people present at the plenary hall. The Prime Minister doing a namaskar and is now departing from the plenary hall. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that the nation is full of pride of its past and its cultural heritage, its heroes and heroines like Mahavir Lachit Barphukan. Prime Minister said it should be our endeavor to inculcate the valor of Lachit Barphukan. He said our ancestors faced lot of tortures and ill treatment from foreign invaders. However, they kept their Indianness, their culture and customs intact despite all obstacles. Common people, valiant warriors, sages and seers all came together in the fight against foreign invaders who wanted to subjugate Indians through the power of the sword. The land of Assam, the Prime Minister said in medieval India, was known for its valor. Assam and the northeast have many times stood up against the invaders ranging from the Turks, the Afghans and the Mughals. He said the Battle of Horaighat was one of the most ingenious naval battles ever. This was the masterstroke of Mahavir Lachit Barphukan. India's history is that of victory against invaders, education, sacrifice, valor and of great Indian traditions. Prime Minister said we are today moving ahead with the motto of nation first. This will lead us to newer heights. The Prime Minister said that history should not be limited to a few decades or centuries, and history in the correct perspective of India, the India of the greatness that India has in the past, should be once again brought to the fore and should be made available to common Indians. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणमान्य व्यक्तियों के साथ विज्ञान भवन के मुख्य सभागार से प्रस्थान करते हुए आज विज्ञान भवन में वीर लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले उत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें, लचित बरफुकन अहोम साम्राज्य की शाही सेना के सेनापति थे। मैं शहसियार खान, अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय, कार्यक्रम प्रभारी पंकजपति पाठक, तकनीकी सहयोगी सुमित कटियार और बाबूलाल बीना के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप सुन रहे थे नई दिल्ली के विज्ञान भवन से आयोजित समारोह का विवरण दे रहे थे एसवाई खान और कौशिक राय।